ایسا تو ٹائم نکلا. بہت اچھا کہ آپ خود آ گئے کیونکہ سارے دن سب دکان پہ بزی رہتے ہیں. آپ کے پاس تو میرے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. جلدی گھر آ گئے تھے آج. یہ وہی رمشا ہے نا. دیکھتے دیکھتے کتنی جلدی بڑی ہو گئی. مجھے تو وہ دن یاد ہے ہاسپٹل میں ایک نرس نے رکھ کے گولیاں میرے ہاتھ میں دی تھی کہ سر کی بیٹی ہوئی آپ کو. اور میرا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر تیرے ہمارے گھر میں رحمت. ارے آپ اس سے پوچھیں اس نے اسے ایک ایک دن جھیلا ہے. بڑی مشکل سے بڑی ہوئی ہے آپ کی بیٹی. دیکھیں سن رہے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہیں نہیں بیٹا تمہاری اپنی تم سے بہت پیار کرتی ہے. مزہ آتا ہے. میری آواز آ رہی ہے سسٹرس؟ جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز کلیئر ہے نا؟ ہاں کلیئر ہے باجی. اچھا ٹھیک ہے چلو ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمد لله يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دیکھیں گے سنتوں کو. ایمان دیکھو جو پہلا ہمارا کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی لا کا مطلب یہ ہے نہیں کوئی. تو نہیں کوئی اللہ کے سوا معبود. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے بندے بھی ہیں جیسے ہم بندے ہیں اللہ کے. اور رسول بھی ہے. اور اللہ سب سے زیادہ انہی کو محبت کیا تھا. تو اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو انہوں نے جس طرح سنت طریقے پر عمل کرنے کو بتایا تھا ہم اسی طریقے کو جانتے ہیں. دیکھو ہم سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ انہوں بتایا اس کو ہم سنت کہتے ہیں. دیکھیے ابھی ایک حدیث بھی بولتی ہوں میں اس کے ساتھ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں یا سونے میں اور رات گزارنے میں شریک نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں وہ داخل ہو تو سلام کرے یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں تو آپ شارٹ سلام بھی کر سکتے ہیں. بس آپ بول سکتے ہیں السلام علیکم. اور کھانے کے وقت آپ بولے بسم اللہ. یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت چھوٹا ہے. بسم اللہ یعنی ہم اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتے ہیں. کوئی بھول کے کھا جاتا ہے تو شیطان اور اس کی جو فیملی رہتی ہے شیطان کی اس کے بچے اس کی بیوی جیسے ہماری ایک فیملی رہتی ہے شیطان کی بھی ایک فیملی رہتی ہے. تو وہ گھر میں ٹھکانہ بنا کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں جھوٹا کر کے ڈالتے ہیں. وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے غیب بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تو جو بھی اللہ دیکھ رہا ہے تو ایک غیب میں آ گیا مطلب ہم کو نہیں دکھ رہا. ایک اوپر سسٹم چل رہا ہے تو ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ شیطان ہم کو دیکھ سکتا ہے. دیکھیے تو وہ نا ٹھکانہ بنا کے وہ یہیں بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے. اگر سونے کے جتنے سنت طریقے ہیں اگر ہم اس کو نہیں اپنا رہے ہیں ہماری زندگی میں وہ نہیں اپلائی کر رہے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے سونے کا بھی ٹھکانہ بنا لیتا ہے. یعنی جہاں ہم سوتے ہیں ہمارے ساتھ چپک کے سو جاتا ہے شیطان ہمارے ساتھ. دیکھو وہ اتنا غلیظ ہے اتنا گندگی ہے اتنی اس کے پاس بدبو رہتی ہے نا. اگر ہمیں وہ محسوس ہو جائے تو ہم مرتے دم تک سنت طریقہ نہیں چھوڑیں گے. تو دیکھیے سسٹرز کیا ہے نا جان جان کر عمل کرنا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مسلمان بنایا تو ہم کتنے نصیب والے ہیں. پھر دیکھو عزیز مور بہنوں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں مسلمان گھر میں بنایا
سب سے افضل بہترین یہ کہ ہمیں امتی محمدیہ میں پیدا کیا. بہت سارے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، کتنے نبی تھے نا. اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ہم اس نبی کے امت میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا. کتنی شان ہستی ہے. دیکھو جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ جو کلمہ ہے یہ اینی ٹائم جڑا رہتا ہے، یہ جدا نہیں ہوتا، قیامت تک جدا نہیں ہوتا، اکٹھا رہتا ہے. کوئی بولے تو کلمہ کیا ہے ہمارا ایمان کا؟ تو ہے لا الہ الا اللہ، نہیں، ساتھ میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. تو سسٹرز ابھی ہم جانیں گے اوکے کہ کیا ہے، کون سے سنتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے. دیکھو ایک بار حضرت امیہ بن مشقہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک شخص کو کھاتے ہوئے دیکھا. جیسے ہی وہ کھانا شروع کیا اس نے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا. تو آخری لقمے میں اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس کا ترجمہ یہ ہے شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو شیطان نے کچھ کھایا تھا، سب کیا ہو گیا؟ الٹی ہو گئی اس کو. جتنا وہ کھایا تھا نا، جب ہم ایک دم فوراً ہمارے دماغ میں ایک بتی چلتی ہے، ارے ہم نے بھول گئے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. تو جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو جتنا وہ شیطان کھاتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے پورا الٹی ہو جاتا ہے. دیکھیے عزیز اور بہنوں، آج ہمارے جسم میں ہم کھانا کھاتے ہیں اچھے سے اچھا، ہم گوشت کھاتے ہیں، انڈے، فروٹ، سبھی، ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. اسی لیے جب ہمارے ساتھ جو شیطان کھاتا ہے نا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ساتھ میں ہمارا بھی بھرتا ہے. جو طاقت، جو انرجی، جو وٹامنس جتنے ہمارے باڈی کو چاہیے وہ سبھی نہیں ملے گا. صرف زبان کا جو لذیذ ہے، جو ٹیسٹ ہے وہ، اور جو نفس بھوکا رہتا ہے وہی بھرے گا. جتنا پورا ہے اس کے اندر کی جو طاقت ہے ہمیں بھی ملتی ہے، لیکن آدھے کا آدھا شیطان کو ملتا ہے. ہاف دا ہاف آف. اب ایک پراپرٹی ہے آپ کے باپ دادا کی، تو آپ کے 2 بچے ہیں، تو ایک بیٹے کو ہاف، ایک بیٹے کو ہاف. تو دیکھو آج اتنی بیماریاں فساد پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ہم سنت طریقے پر عمل نہیں کر رہے. ایک چھوٹی سی سنت ہے پانی پینے کے، بس کتنے ہیں سنتیں؟ کوئی بتا سکتا ہے پانی پینے کی سنتیں؟ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ زیادہ نہیں، بس 2-3 گھنٹے کا جی باجی السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہمارا پروجیکٹ ہو جائے گا. پانی 3 جی، پانی 3 سانس میں پینا، پانی بیٹھ کر پینا، پانی جی دیکھ ایک کر منٹ، پینا. ہاں ایک منٹ، ایک کال آ گیا. ڈیڈ وہ اینوئل بونس تو دیتے ہی ہیں ہم، اگر ہر دوسرے مہینے بونس دینا شروع کر دیا تو پروجیکٹ کا پروفٹ مارجن کم ہو جائے گا. خدا سے اپنے لیے فضل اور ترقی مانگتے رہتے اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے سے ڈرتے ہو. ارے ڈرو اس وقت سے جب اپنا فضل ہم پر نہ روک لے. افنان جی ڈیڈ، جیسے آپ کی مرضی. مامو جان آپ نے ڈرائیور کو باہر بھیجا ہے؟ ہاں بیٹا، وہ افشی کے ساتھ گیا ہے، وہ سامان لینا تھا. افشی کو کچھ کیوں تمہیں جانا ہے؟ جی مجھے اپنے دوست کے گھر جانا. اوکے سسٹرز، ہاں پانی پینے کی سنتیں کسی سسٹر نے بولا نا. جی السلام علیکم. جی بسم اللہ آتی ہے. پانی پینے کے 3 سنتیں ہیں. بسم اللہ کہہ کر پینا، بیٹھ کر پینا، پانی دیکھ کر پینا، اور پانی جی 5 ہے شاید نا. پانی بیٹھ کر پینا، بسم اللہ کہہ کر پینا، پانی میں دے کر پینا، اور 3 سانس میں پینا، اور سیدھے ہاتھ سے پینا. 6 سنتیں پانی میرا کی. دل چل رہا ہے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں. باجی میں بات تم بتا سکتی تھی، میں بتانے والی تھی. 3 ہے. 3 تو ہے نا باجی، یہ 3 تو ضرور رہتے، یہ تو یاد رہتے اپنے کو. سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بسم اللہ کر کے پانی پینا، سیدھے ہاتھ بول کے پانی پینا، دیکھ کر پینا، پانی بیٹھ کر پینا.
3 सांस में पीना और पानी चूस के पीना। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। 6 सुन्नत है। 6 सुन्नत। हाजी हम बोला हाँ, नहीं, आपको याद करके आना पानी करोगे। 3 सांस में पीना, पानी देखकर पीना, बैठकर पीना, सीधे हाथ से पीना, बिस्मिल्लाह बोलना और अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, लास्ट में अल्लाह अकबर बोलना। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। चलो जी, सुन्नत है दाएं हाथ से पीना, बैठ कर पीना, खत्म करके आप जी बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, 3 सांस में पीना, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तो आज जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, आज के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये रिसर्च किया कि पानी खड़े होके हम क्यों नहीं पी सकते। जैसे पानी हम पीते हैं ना, इतना फोर्स से हमारे अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जाता है ना, वो जाके किडनी, लीवर दोनों को डैमेज कर सकता है। अब आइंदा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, और जो खड़े होकर पानी पीते हैं, रिसर्च ने बोला 80% उनको कैंसर आने की चांसेस हैं। आगे बहुत चांसेस है कैंसर आने की। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमने ये सिखाया कि बैठ कर पीना और देख कर पीना। देखो पानी कभी खुला रहता है ना, या कोई छिपकली या कुछ चीज पड़ जाए तो वो जहर बन जाता है। उसके अंदर इतने क्रोनिक एसिड्स रहते हैं ना, वो ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए देख कर पीना ये भी एक सुन्नत है। अगर हम एक सुन्नत को जिंदा करें तो हमें 100 शहीदों का सवाब है। देखो आज फलस्तीन में, शाम मुल्क में आज जो जंग वहाँ लड़ रहे हैं ना, तो गाजा में, कश्मीर में, सब वहाँ एक एक मर रहे हैं, तो उनको एक ही शहीदों का सवाब है। देखो जिहाद में वो भी उनको जिहाद में ही सवाब है। हम एक सुन्नत को जिंदा करें तो 100 शहीदों का सवाब है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप यहाँ से किसी और शहर जा रहे हैं, बस आप सफर करते करते कोई पत्ता देखा, कोई झाड़ देखा, कोई फूल देखा, वो फूल में रंग देखा, तो जैसे आप गौर फिक्र के साथ देखकर, जैसे आपके दिल में आप ये नियत डाल के आप जबान से जब बोलते हैं धीरे से ही, या अल्लाह तूने कितना खूबसूरत बनाया, या अल्लाह कितना अच्छा बनाया, जैसे हम अल्लाह की रहमत पर गौर करते हैं, तो इसके लिए भी 100 शहीदों का सवाब है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये हदीस से मफहूम है। जो हदीस में आई है बात, ये बिल्कुल सही रहती है, एकदम झूठ नहीं रहती। जितने भी हदीस में आए हैं वो सही ही रहती है। तो पानी पीने की सुन्नतें हो गए। अभी देखो खाने खाने के बाद की एक दुआ है, जो एक बार अबू सईद खुदरी ने फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वो खाना खाते थे तो एक फारिग होके हाथ धोने से पहले दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तो इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा की जरूरत नहीं है आपको, बट तर्जुमा क्या है, हम ये क्या बोल रहे हैं, इसका मायना देखो। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। ओके, बस आपको ना खाने से पहले की बात की सब दुआ कर प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना है। ओके, अब एक सुन्नतें जानते हैं खाने की। अब खाने के बाद की दुआ आके पढ़ूं बाजी? नहीं, मैं लास्ट में बोलती हूँ सिस्टर। ओके, मैं पूछती हूँ लास्ट में। जी, हम देखो आजकल मॉडर्न जमाना है, फैशन परिस्थिति का इतना मॉडर्न। अगर हम छोटे कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, कलरफुल कपड़े, चमकी का कपड़े, तो हमें बहुत इज्जत मिलती है। स्टोन वर्क के कपड़े, जैसे हम सादा लिबास कॉटन का पहनते हैं तो हमें मतलब बुरी नजर से, बुरी नहीं, एकदम नीच वाली। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास 1 केजी का है। मेरे मामू के बेटे की शादी थी, मैं एकदम बुर्खा डाल के गई थी। मतलब मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे सब ने मतलब इतने ड्रेसेस है, इतने साड़ीज है, 30,000 की साड़ी। अब इतने साड़ीज क्यों लिए? मतलब मैं बोलती हूँ कि अरे मेरे पास है तो मैं दूसरों को क्यों दिखाऊं, है ना? जो है आपको क्यों दिखाना है, दूसरों को क्यों दिखाना है कि हाँ मेरे पास है। देखिए अगर मेरे पास इतना माल है बोल के मैं किसी को जेवर डाल के दिखाऊं, अगर उसके सामने वाले के पास वो नहीं है, उसके दिल में ये आ जाए कि अल्लाह तूने मुझे नहीं अता किया, तो वो क़यामत के दिन तो बहुत दूर है, खबर में लोहे का सांप, गंजा सांप बन के आके डसेगा। तो मैं ये सोचती हूँ अल्लाह बस तूने मुझे अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं घर पे पहनूंगी, घर पे शादी पे कितना 4-5 आवर्स पहनना है ना, वो एक शौहर के सामने पहनूंगी, शौहर के सामने सजदत करूंगी। दूसरों के सामने क्या दिखाना, ना महरूम को क्या दिखाना, है ना? देखो एक और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो क्या है, औरतों की सरदार है,
औरतों की सरदार किस लिए है? इसलिए नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, इसलिए नहीं थी। देखो उनको 4 बेटियां थे, 4 बेटियों में 3 बेटियां फौत हो गई, गुजर गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे। तो ये चौथी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा थी, जो कि उनकी जो पहली बीवी थी, क्या है नाम, खुद खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी। ओके, उनकी जो बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा है। देखो जैसे ही वो बाहर निकलती थी ना फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, इतना चादर डालती, इतना चादर यानी बुरखा, इतना बुरखा हम डालते हैं और बुरखा फिर ओढ़ने फिर नकाब, वो भी क्या है टाइट फिटिंग, यानी इधर दिखना पीछे दिखना। वो ऐसा नहीं करती थी, इतना चादर डालती थी कि आधा मीटर लंबा, यानी जब यहाँ से हम जा रहे हैं तो बहुत दूर तक वो जो पीछे की ओढ़नी थी वो झाड़ के ऐसे ही आती थी। तो एक बार सहाबा देख के आके फरमाए फातिमा रजी अल्लाह अन्हा क्यों इतना पर्दा करती है? वो बोली कि जो आगे जो नस्ल है, ताकि जैसे हम पर्दा कर रहे हैं वो बहुत फैशन परस्ती का आएगा, यानी देखो जुल्म होएगा। देखो हम सजदों के जाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, हम मेकअप करते हैं, मतलब हम जेवरात दिखाते हैं, यानी किसी के दिल में कीना आता है बहुत ज्यादा है। और नामहरम जब मर्द है, देखो अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर ना एक डिजायर रखा है कि कोई अच्छी औरत है तो वो दोबारा देखेगा, देखते रहेगा, उसे ख्वाहिश होती है कि मैं उसको बात करूं, उसे जाऊं, उसके साथ रहूं, ऐसा होएगा क्योंकि शैतान जो हमेशा हमारे साथ रहता है और उसके ऊपर डिजायर रहते हैं। औरत को इतना नहीं रहता है, जो मर्द है ना उसको रहता है। इसलिए ये हुक्म भी है कि आप जिस बीवी से आपको 4 शादियां का हुक्म भी दिया है मर्द को। तो देखो ये एक हम कितना ख्याल रखा है तुम्हारा, रहने दो, आप अफनान को नहीं जानते। यही तो मैं जानना चाहती डे में रखेंगे, क्योंकि हम इस्लाम, हम मोमिन है, हम काफिर नहीं है। तो वो काफिरों के लिए ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया ही उनके लिए जन्नत है। हमारे लिए क्या, हम मोमिन है, हम जब मरेंगे हमारी जिंदगी वहां से शुरू होती है। हम मोमिन है ना सिस्टर्स, तो हम मुसलमान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम क्या है, उम्मत है। हम खबर में क्या बोलेंगे, जवाब क्या देंगे, हम अशर के मैदान में क्या जवाब देंगे, हम क़यामत पे क्या जवाब देंगे। सिस्टर्स थोड़ा सोचिए, ये थोड़ी सी जिंदगी है। देखो मेरी 25 साल की जिंदगी हो गई, मैं बहुत रोती हूँ, अल्लाह मुझे 25 साल कैसे गुजरे, अल्लाह मैं कितनी गफलत में गुजर, मैं हर सजदे में दुआ करती हूँ। तो देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा एक 2 साल की बेटी, एक 4 साल का बेटा है। बस अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिदायत दे दी, इतनी तौफीक दे दी, मैं बहुत रोती हूँ कि कितनी जिंदगी गुजर गई। सिस्टर आप सोचिए, कोई 40 साल का है यहाँ, कोई 50 साल, कोई 60 साल, तो पीछे मुड़कर देखो आपकी जिंदगी कितनी गुजर गई, कितनी हो गई है सिस्टर्स। तो थोड़ा आंख खोलो, अभी देखो जो अर्श अल्लाह ताला ने कैसा बनाया होगा, जो आप आसमान के नीचे बैठे हो, देखो आसमान सुतून का कैसा खड़ाया होगा। अल्लाह ताला हर चीज, जितने पत्ते हैं, जितने दुनिया में पत्ते हैं, जितने गिर रहे हैं या जितने गिरने वाले हैं या जितने अभी गिरना चाह रहे हैं, वो अल्लाह ताला को इल्म है। क्या अल्लाह ताला, हम इतने बड़े बड़े इंसान हैं, हमें नहीं देख रहा अल्लाह ताला? बस ये दिमाग में लो कि जो भी कर रहे हैं हम, अल्लाह इज वॉचिंग, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, मुख्तदिर है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एक मफहूम बोलती हूँ इसका, हाँ मेरी बच्चे सता रही थी। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर हम अल्लाह की तारीफ करना स्टार्ट कर देना, जितनी दुनिया है, जितनी दुनिया में झाड़ है, झाड़ को कट कर दो, कट करके आप क्या करो, पेपर बनाओ, यानी जो लिखते हैं ना कागज बना लो, और जितना समंदर है उसमें जो हम पेन बनाते हैं ना, कलम, इंक बदल लो, इंक डाल के लिखते जाओ। आप जिन्ना शैतान औलिया अंबिया ताबईन तबे ताबईन सहाबा जितने हैं वली अल्लाह, सभी मिलके लिखो। 1,24,000 नबी, उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अल्लाह की तारीफ लिखे, अल्लाह की तारीफ लिखते जाए। आखिर में कागज भी खत्म हो जाएगा
सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की जो तारीफ है उसका 1% भी हक नहीं अदा होगा। यानी हम अल्लाह का जो तारीफ है हम कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा है अल्लाह, इतना बड़ा है, अल्लाह अकबर। तो अभी हम खाने की सुन्नतों पर आते हैं सिस्टर्स। पहले ये है कि दस्तरखान बिछाना, जो मैं बोली फैशन परस्ती है। तो मैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं सोचती हूँ कि नहीं आज से ही डालना है, तो मैं क्या करी ना, समझो 1 साल से ही मेरे बच्चों को मैं बिठाती हूँ दस्तरखान पे। जैसे ही मेरी बेटी आती है लेके, वो बिछाती है खुद, तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, या अल्लाह मेरे घर में सुन्नत तरीका जिंदा हो रहा है। तो अभी आपके बच्चे है ना, आज से डालो इंशाल्लाह, आज से बिठाओ नीचे। देखो जब भी हम स्टूल पे बैठ के खाते हैं ना सिस्टर्स, जैसे हम खाते हैं आप देख सकते हो, लाइक अभी नहीं, समझो 40 इयर्स 50 इयर्स के बाद ना, जितना हम खा खा के बैठते हैं ना, जो हमारे पैर है वहाँ एलिफेंटिसिस बोल के डिसीज आ रही है। यानी पूरा जो भी खा खा के बैठते हैं ना, पूरा उसका जो रस रहता है, गोश्त यानी जो ताकत रहती है, पूरा उतर के ना जो नीचे का पैर है इतना मोटे मोटे हो जाएंगे। जब भी हम खाना खाते हैं तो पैर रखकर ही खाते हैं ना, ये नहीं खाना चाहिए। तो जो सुन्नत तरीका है वहाँ क्या करना है, हमें बैठ के खाना है। ओके, उसके बाद देखो हमें पहले क्या, दोनों हाथों धोना है। यानी कुछ हम काम करें, कुछ भी करें, विटामिन सभी मर जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे। और देखो खाने से पहले दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाह। एक बैठो या 2 जानू बैठो साथ में, अब कोई बेटा है, बच्चे हैं, दादा, कोई भी 2 बैठो। और पहले क्या है, आपको दाएं हाथ से, दाएं किसे बोलते हैं, सीधे हाथ को बोलते हैं। ओके, सामने से खाना, ऐसा नहीं कि आप खुद प्लेट लेके बैठ जाओ, प्लेट दस्तरखान पे रखो और झुक के खाओ, ताकि आपको जब पेट दबेगा ना तो खाना भी कम हो जाएगा। ओके, आप ना 100% में 70% खाना खाओ, 30% आप पानी के लिए छोड़ दो। और देखो सुन्नत तरीके पर 3 उंगलियों में खाना, आजकल 3 उंगलियों में नहीं खा रहे, सब लोग मिक्स करके खा रहे, तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 उंगलियां हैं तो स्टार्टिंग के दोने वाले 3 उंगलियां लो, ताकि जो हमारे सुन्नत तरीके हैं वो अमल हो जाए। अगर लुकमा गिर जाए तो वो भी उठा के खा लेना, ऐसा नहीं कि दस्तरखान पे ही छोड़ देना। ओके, वो भी उठा के खा लो। बर्तन और उंगलियों को चाट के आपको साफ करना है। और ऐसा नहीं कि हम नीचे बैठ रहे हैं, कोई टेका लेके बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपके पास चप्पल है, जूता है, खाते वक्त वो निकाल के खाना। ओके, देखो आजकल इतनी गैरत आ गई है कि पहले खाना बाहर खाते थे, अंदर खाते थे घर में, आज फैशन से जाते हैं होटल्स पे, जूता चप्पल वगैरह पहनते हैं, ना महरम आके ऑर्डर करता है, मैडम क्या चाहिए अब, है ना, इतनी गैरत देखो। तो हम बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए। हम घर पर इतने बुरे कपड़े पहन के, नाइटीज पहन के रहते हैं। सफवान नहीं बेटा नहीं करना, अल्लाह अल्लाह देख ली। तो देखो तो क्या है, खाते वक्त आपको चप्पल निकाल के खाना, खाने में आपको आइब ना लगाना कि ऐसा है ऐसा है। तो पहले ना एक चांद दिखता था, फिर एक और चांद, जबकि दूसरे महीने में दिखता था, तो इतना वो सब्र करते थे, बस खजूर और पानी, खजूर पानी, खजूर पानी। इसलिए देखो अरब में आज तक किसी कौन सा फ्रूट्स भी नहीं उड़ता, पूरे एक्सपोर्ट होते हैं बाहर से। ओके, तो एक फल भी वहां नहीं उड़ता, कुछ भी नहीं, खाली खजूर ही उड़ता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खजूर के दरख्ते थे, वो आज भी ऐसे दरख्ते ही हैं, क्योंकि खजूर में वैसी ताकत है जो कोई ग़िज़ा में नहीं है। तो खजूर और पानी पीते थे। तो आप क्या है, ऐसा नहीं बोलना कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये तेज, ये खारा, ये कड़वा, कुछ भी नहीं बोलना है आपको। और देखो आपको बहुत गरम गरम नहीं खाना। आज हमें पता नहीं है, लेकिन हमने डॉक्टर्स बोलते हैं कि गरम गरम क्यों नहीं खाना। देखो जब भी हम गरम खाते हैं, जैसे हमारे दांत है ना, दांत के अंदर जो मसल्स है, जो बारीक बारीक नस है, वहाँ वीकनेस, यानी जैसे हम गरम खाते हैं हमारे दांत, यानी दांत के मसोड़े में एक कमजोरी जैसा लाइक वीकनेस आ जाती है, और बाद बाद हलना शुरू हो जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो सुन्नत तरीका ये भी है कि बहुत ज्यादा गरम ना खाना, ठंडे को छोड़ दो, खाओ। फिर और खाने के बाद की दुआ आपको पता है वो बोलो, और बहुत फूंक नहीं, लेकिन खाने में हम जैसे जब हम चाय पीते हैं, कुछ गरम पीते हैं, ऐसा करते हैं ना, ऐसा खाने में बिल्कुल भी आपको फूंक नहीं मारना। खाने के बाद क्या करना, दोनों हाथों धोना। बाज लोग क्या करते हैं, एक ही हाथ धोते हैं और कुल्ली करते हैं,
कुल्ली भी नहीं करते आजकल, लेकिन कुल्ली करना, क्योंकि जो हम गोश्त खाते हैं अगर जाके वो कहीं दाढ़ के अंदर बैठ गया तो वहां से क्या कीटाणु स्टार्ट होता है, वहां से कीड़ा आना स्टार्ट हो जाता है। ओके सिस्टर्स, इंशाल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। पानी पीने के बाद हम बस अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन आज मैं एक दुआ सिखा रही हूँ सबको, वो दुआ आपको कल याद करके बोलना है। ओके, वो दुआ एक बार देखो, अबू जाफर ये सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीते तो ये दुआ पढ़ते थे। वो कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उताजम बिज़ुनूबिना। ओके, ये वाली दुआ मैं आप सभी को ओके फोटो पकड़ के डालती हूँ। आप सबको पानी पीने के बाद ये वाली दुआ जो है याद करके, इंशाल्लाह कल क्लास नहीं होगी, ओके मैं ट्यूसडे इंशाल्लाह लूंगी, तो आपको सीखना है। हम शैतान का मुंह काला करना है ना, इंशाल्लाह एक एक सुन्नत हम अमल कर कर जान जान के अमल करेंगे। हम शैतान को एक मौका भी नहीं देंगे। आज से इरादा करके उठो, इंशाल्लाह ईशान के जैसे ही आप नमाज में खड़े होते उससे पहले वजू में सबसे पहले है मिसवाक। ओके, मिसवाक ये भी एक सुन्नत तरीका है। मिसवाक से हमारा जो नूर है ना लैक्मी क्रीम से रोशन होगा, इतना रोशन होगा, आप यूज करके देखो। मिसवाक से पहले आपका जो फेस है वो नूरानी होगा, शैतान का मुंह काला करेगा, आपके जितने मुंह में बदबू है वो गायब हो जाएगी। कहीं के मुंह में बदबू आती ही रहती है, वो गायब हो जाएगी। और कहीं के मैं खुद ना एक मेरा दाढ़ मैंने कढ़ाया है, यहाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो जो जैसे मैं मिसवाक यूज करना स्टार्ट करी, जब मेरे दाढ़ मजबूत होने लगे, और मैं खुद पढ़ी हूँ और बाद में देखी अरे हाँ ये वो बिल्कुल सही है। मैं खुद फज़ाइल अमल में पढ़ी हूँ ये वाला, कि जैसे आप मिसवाक यूज करते हो आपके जो मसोड़े हैं, दांत है, उसके जो जड़ के रेशे हैं वो मजबूत हो जाते हैं। इंशाअल्लाह हम सबको एक एक अमल ओके जान जान के करो। आपको जो भी पता नहीं मुझे पूछो, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको बोल के दूं जितना मुझे आता है। आपको जितना आता है आपको दूसरों को बोलना है, ऐसा नहीं कि आप खुद रख लो। हमें ईमान को फैलाना है। हमें देखो हमें क्या मिला है बोलो, हमें एक चांस मिला, एक मौका मिला कि हम तबलीग करें, यानी हम दूसरों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए उस बातों को जाने और अमल करें इंशाअल्लाह। और देखो मिसवाक करो, फिर वजू ऐसा करो कि आप खुशू के साथ बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करो। ओके, वजू का शैतान एक है, वजू के शैतान का नाम है हमजा शैतान है वो। वजू का शैतान क्या है ये मैं बताती हूँ। देखो जैसे ही आप वजू करते हो ना, एक शैतान आपके पीछे ही रहता है कि वैसे वजू करके आप नमाज को आते हो जाने नमाज तक, आपके दिल में दिमाग में वो ऐसा वसवसा डालता है कि हाँ तुमने फेस यानी मुंह नहीं सीधा धोया, पैर नहीं सीधा धोया, आपने सर का मसा सीधा नहीं किया, आपने नाक में पानी सीधा नहीं डाला। तो देखो इसके लिए क्या करना है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वो जो वजू का शैतान है वो फारिग हो जाता है। फिर क्या है, कुल्ली करना। जैसे ही नाक में पानी डालते हो तब तक वही शैतान खड़े रहता है। नाक में पानी आपको नरम हड्डी तक ही डालना, नहीं तो बिल्कुल वजू नहीं होगा आपको। ओके, नरम हड्डी तक अच्छी तरह पानी डालना, अच्छी तरह 3 4 5 बार डालो। ओके, जैसे नाक में पानी डाल के उसकी गंदगी साफ करते हो, शैतान वहां से इतना दूर भागता है इंशाअल्लाह। उसके बाद चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा, पाँव भी अच्छे से लगड़ के एक एक अंगली के अंदर आप हाथ डाल डाल के करो। फिर अशहदु अल्ला इलाहा आसमान की तरफ देख के उंगली उठा के बोलो। सिस्टर्स आप भी मुझे देखो, इशा की नमाज का भी वक्त है, माजरत चाहती हूँ, घर पे भी मेहमान आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, मेरे जेठ के लड़न के सभी होके, और अल्लाह ताला सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका चैनल आएगा। जी सिस्टर्स, आपको कुछ हाँ नाक पे 3 बार डालना है सरीन बेगम। अगर 3 नहीं तो आप
3 बार बस। अगर नहीं निकला गंदगी तो आप 4-5 बार डाल के नरम हड्डी तक पहुंचना है आपको, ऊपर तक। ओके इंशाल्लाह। जब तक आप नाक में पानी सीधा नहीं डालेंगे तब तक शैतान नहीं जाता, वहीं रुकता है शैतान। जैसे पानी डालते हो ना नाक में तो फौरन जाता है। ये हदीस है, ये मैं नहीं बोल रही, हदीस है। इंशाल्लाह ये सभी आपको डालूंगी, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। वक्त में सभी दुआ में ये मांगो कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे, वक्त में बरकत दे दीन के लिए इंशाल्लाह। ओके सिस्टर्स, हम मिलेंगे फिर, कल नहीं होगा, कल के बाहर जाना है, संडे मंडे। ओके जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। कुछ डाउट्स हैं? फौजिया, मुबीन, सरीन बेगम, सवालिया, हुसैन बेगम। ओके अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। वैया की भी खैर सिस्टर।